નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું લતાબેન ધોરણ 7બીની વર્ગ શિક્ષક છું. હું તમને સંસ્કૃત અને હિન્દી વિષય શીખવીશ. સ્ટાન્ડર્ડ 6માં તો તમે હિન્દી વિષય શીખી જ ગયા હશો. હવે સ્ટાન્ડર્ડ 7માં પણ આપણે હિન્દી વિષયનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો હિન્દી વિષય અને સંસ્કૃત વિષય બંને વિષય હું લઈશ. તો હિન્દી વિષય માટે તમારે ફૂલ સ્કેપનો એક ચોપડો બનાવી દેવો. આ ઉપરાંત એક નિબંધની નોટ પણ બનાવવાની રહેશે, જેમાં હું તમને નિબંધ લખાવીશ. મારી સાથે સ્ટાન્ડર્ડ બીમાં તમને ગણિત વિષય અંકુરભાઈ શીખવવા આવશે, વિજ્ઞાન ખુશ્બુબેન, SS કાવ્યાબેન, ગુજરાતી ઉર્વિશાબેન, અંગ્રેજી જાગૃતિ મેમ શીખવશે. તો આ બધા વિષયોનો અત્યારે સ્કૂલ બંધ છે એટલે તમને વિડીયો મોકલવામાં આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્કૂલ બંધ છે પણ શિક્ષણ નહીં, એટલે કે શાળા બંધ છે, શિક્ષણ નહીં. એટલે આપણે ધ્યાનથી જે પણ વિડીયો તમને મોકલવામાં આવે એનો અભ્યાસ તમારે કરવાનો છે. અને વિડીયો પૂરો થયા પછી, ધ્યાનથી જોયા પછી તમારે એની વિષયવાર CW નોટ બનાવવાની છે. અને જે પણ PDF ફોટા મોકલવામાં આવે એ લેખન કાર્ય તમારે તમારી નોટ બનાવેલી નોટમાં કરવાનું રહેશે. જ્યારે સ્કૂલો ખુલશે ત્યારે બધા જ સબ્જેક્ટ ટીચર ફરજિયાત તમારી એ નોટ ચેક કરશે. જુઓ, આ છે તમારું પ્રથમ સત્રનું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક. તો તેમાં આપણે પ્રથમ ચેપ્ટર ભણીશું, જેનું નામ છે ચિત્રપાઠ. તે હું તમને બતાવું છું. તો સૌ પ્રથમ પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે એની અનુક્રમણિકા જુઓ કે આપણે પ્રથમ સત્રમાં કેટલા પાઠ છે. તો પ્રથમ સત્રમાં કુલ 8 પાઠ છે. તેમાંથી પ્રથમ જે પાઠ છે ચિત્રપાઠ છે, અને એનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ, એટલે કે ચિત્રની સાથે સાથે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણો પ્રથમ પાઠ, ચિત્ર કે સંગ સંગ. ધ્યાનથી જોજો. તો આ છે એનું ચિત્ર. આ ચિત્ર જોઈને તમારે ચિત્રમાં શું શું ક્રિયાઓ થઈ રહી છે એના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે. પ્રશ્નો હું તમને પૂછીશ, તમારે એના જવાબ લખવાના છે. જુઓ એના પછીનું પેજ નંબર 2. તો પેજ નંબર 2માં પણ ચિત્ર આપેલું છે, જેમાં બધું પહેલાં ચિત્રમાં આપણે જોયું કે બધું શાંત હતું વાતાવરણ. જ્યારે બીજા ચિત્રમાં આપણે જોઈએ કે બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. તો એવી કઈ ઘટના બની જેના કારણે આવું થઈ ગયું, તો આપણે ભણીશું. એના માટે હું તમને એક વિડીયો બતાવીશ સરસ મજાનો, એને સમજાવીશ પણ ખરા. तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा ना वीडियो में कि कैसे सब अपने अपने काम में व्यस्त है. कि साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा है, एक कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजड़ीन कहते हैं. तो कुंजड़ीन अपनी सब्जियां टोकरी में भरकर ले जा रही है. एक गुब्बारे वाला भैया है, वो अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है. गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. जो दुकान के पास में एक डंडा है, उस डंडे पर एक तोता बैठा है.
रास्ते पर जो सड़क है, सड़क के किनारे एक मोची बैठा है और वो ग्राहक आने की राह देख रहा है। उसके बाजू में एक कुत्ता आराम कर रहा है। तो इस चित्र में सड़क के किनारे का और सड़क का दो चित्र दिए गए हैं। तो दोनों तरफ क्या क्या घटनाएं होती है और क्यों होती है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो सड़क पर देखो बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे रिक्शे वाला जा रहा है और दो कारें भी जा रही है। दूर थोड़े से मकान भी दिख रहे हैं, बरोबर। तो अब हम इसके प्रश्न पूछने से पहले चित्र दूसरा देखेंगे कि दूसरे चित्र में क्या क्या हुआ। अरे अरे, क्या हुआ? साइकिल का टायर तो हवा भरने से फट गया। कई बार ज़्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। टायर तो धड़ाम करके फटा, लेकिन और क्या क्या हुआ ज़रा फिर से देखिए कि हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। बेचारी जो कुंजड़िन थी उसकी टोकरी गिर गई, चौंक गई थी वो टायर फटने से, और उसकी सारी जो सब्जियां थी वो ज़मीन पर गिर गई। गुब्बारे वाला आदमी भी आवाज़ से घबरा गया और उसके हाथ से वो गुब्बारे छूट गए। तो सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। उसमें गैस भरी हुई थी इसलिए। मोची का सामान भी बिखर गया और कुत्ता जो आराम कर रहा था वो भी भागने लगा। ये बेचारा रिक्शे वाला वो भी अपनी गति से जा रहा था, लेकिन वो बाइक से टायर फटने के कारण टकरा गया। बाइक वाले ने ज़ोर से ब्रेक लगाई तो वो रिक्शे वाले से टकरा गया। इस तरह टायर फटने से बहुत सारा नुकसान हो गया। तो देखे विद्यार्थी मित्र, कैसा सब अस्त व्यस्त हो गया। एक टायर फटने से कितना सारा नुकसान हो गया, देखा ना आपने। तो अब मैं आपको पहले चित्र के बारे में, यानी पहले चित्र में कैसा था और टायर फटने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। तो विद्यार्थी मित्र, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले चित्र में एक साइकिल की दुकान है और साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। नंबर 2, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 3, एक कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद वह अपने ग्राहक आने की राह देख रहा है। तो इस तरह हम पहला जो प्रश्न है उसका आंसर लिख सकते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, કે અહીંયા કઈ કઈ ક્રિયાઓ કે કયા કયા કાર્યો થઈ રહ્યા છે। હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो आपको तो मालूम ही होगा, मालूम है ना कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं।
ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो वो भी आपको मालूम होगा क्योंकि आपके पास भी साइकिल है ना। तो सुनिए उसका उत्तर। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो देखिए उसका आंसर कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। अब 5वां प्रश्न देखिए। कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली स्त्री कहाँ कहाँ जा सकती है? तो वो भी आपको मालूम होगा क्योंकि आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में सब्जी बेचने वाली आती है ना। तो सुनिए उसका उत्तर। कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। अब 6ठा प्रश्न देखिए कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली होगी, यानी कि दूसरा कोई यात्री उसे नहीं मिला होगा, इसलिए एक ही यात्री बैठा है। विद्यार्थी मित्र, अब हम जो हमारा दूसरा चित्र है उसका भी अवलोकन करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हमारा यहाँ जो चित्र है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई है वो भी आप ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। तो पहला जो प्रश्न है वह टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो उसका आंसर मैं बताती हूँ कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। तो ऐसे देखा ना आपने कि ये चित्र का अवलोकन करके हम पहला जो प्रश्न है उसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखो। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो उसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों में गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि आ सकता है। ये सारी चीज़ें रबर से बनी हुई होती है इसलिए वो फट सकती है। तीसरा प्रश्न। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो आपको तो मालूम होगा कि क्या हुआ था। ठीक है, मैं आपको आंसर बताती हूँ। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था और टायर फटने के कारण वो घबरा गया। रिक्शे वाला भी घबरा गया, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। चौथा प्रश्न। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? यानी कि किस पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा?
यानी कौन टायर फटने से नहीं चौंका? तो टायर फटने का प्रभाव कारों और मकानों पर नहीं पड़ा क्योंकि वह दूर थे। 5वां प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। तो देखा ना विद्यार्थी मित्रों, कैसा शांत वातावरण था, सब अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे थे और अचानक ही टायर फटने के कारण कैसे सब उथल पुथल हो गया। तो अब आप इस पाठ को ध्यान से, जब आपके पास पाठ्य पुस्तक आ जाए तब उसे ध्यान से देखना। और मैं इसका जो प्रश्नों वाला स्वाध्याय है वो मैं आपको PDF या फ़ोटो द्वारा भिजवाऊंगी, तो आप उसे लिख लेना। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।